business is not about guiding the investor's return. Your business is about holding the investor's behavior. It was a very clear indication that world is divided into two parts, AI, non-AI. जो AI markets थे वहाँ पैसा जा रहा था, जो इंडिया नहीं था. 95% of your wealth is from asset allocation, 5% wealth is from market movement. But 95% of discussion happens on market movement. There is a reason why, अगर यूरोप आप देखें, 80% of retail money goes into multi-asset structure. Welcome to our series Insights from the Top. Markets can be noisy. Emotions can run high. Many investors feel confused that what to do or what not to do. Today we want to focus on what really matters in long-term investing. Patience, discipline, staying invested. We are very happy to have with us Swaroop Mohanty, CEO of Mirae Asset Management India. He has over 30 years of experience in investment industry. He understands markets ups and downs very well. He also understands behavior of the long-term wealth creation. Under his leadership, Mirae AMC has grown from 440 crore to 2.3 lakh crore in 15 years, which is more than 500 times of growth. Welcome, Mr. Swaroop Mohanty, for being with us today. No, thank you so much for having me. It's such a pleasure. There are some questions in the mind of the investor which we would like to have some clarity for investors. India is oftenly we talk about a long-term growth story, right? कि इंडिया में पैसा बनेगा. But despite of so much global uncertainty, हर जगह से देखो तो geopolitical, something economic data, trade wars वगैरह सब हो रहा है. So how you will look India growth story and how it will create wealth for the investors? I think very important question और सबके दिमाग में ये question है. हम लोग जब when we were young we were told that world is before Christ and after Christ. फिर धीरे धीरे पता चला कि world is before COVID and after COVID. Right now we are seeing a world before tariff and after tariff. आप ये मान के चलो अगर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी अपना बर्ताव चेंज करता है, then rest of the world will also change its behavior, right? And that is the environment that we are in. I think it is a structural global change, and all of us have to track this space practically on a monthly basis. The impact will be there, and there is no denying the fact that the impact will not be there. But in this whole world of geopolitical uncertainty, and data will suggest, मेरा कहने से कुछ नहीं होता है, India stands out like an isolated island. This is, if you look at the decadal growth of last 20-30 years, India would be the most consistent growing country in the world. अगर आज के डेट में भी हम लोग बात कर रहे हैं 6.5% का ग्रोथ है, ऐसे मानते हैं 6.5 का 6 हो सकता है, 4 तो नहीं हो सकता, ये सब लोग मानते हैं. When you look at this consistency of growth, there is absolutely no country in the world which will double its economy in the next 7-8 years, right? That's the state that we are in. This 4 trillion economy will become 8 trillion in the next 8-10 years. If things go wrong, it can become an 11-12. If things go right, it can be 8-10 years. And that's something which people have to focus on. आप कुछ भी बोलें, ये बरकरार है. जब हम लोग यंग थे, अगर कोई बोलता कि इंडिया वुड बी बिगर देन जर्मनी एंड जापान, हम तो विश्वास नहीं करते. बट आज के डेट में वी आर हेडेड टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. एंड ये मार्केट में 2 तरीके के लोग रहेंगे. One who will understand that ये 8 trillion बनेगा. One who will look at the market at 80-82,000 सेंसेक्स. अब दोनों के बिहेवियर अलग हो गए. आप डिसाइड करो आप कौन हो. अगर 8 ट्रिलियन बनेगा तो ये कंट्री नया से बनेगा. And one of the best ways to get that growth of the country in our lives is through the capital markets. But that is the catch. जो बैठ जाएगा वो ग्रोथ ले लेगा, और जो ये नॉइज़ ऑफ 80,000 में अटक जाएंगे जो लोग, वो शायद ये ग्रोथ अपने पोर्टफोलियो में नहीं ले पाएंगे. बहुत इजी है कहना, और डिसिप्लिन लाना थोड़ा मुश्किल है, बट जो डिसिप्लिन ले आएंगे
वो ये ग्रोथ अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। How important are developments like US trade deal? दूसरे भी काफ़ी FTAs हुए हैं like with न्यूजीलैंड, UK, UAE के साथ में, right? So how you will see कि how it will benefit to the India and how it can create a long-term wealth for the investors. Actually, you are in a situation where you cannot isolate or hide any economy from the rest of the world. ये inclusive world है और सबको साथ में रहना है, right? अगर आप हमारे 2025 का कमेंट्री आप देखें तो हमें लग रहा था अंडरलाइंग में कुछ ट्रिगर नहीं था बाजार में। वही जब 2026 जनवरी में हम लोग बात किए तो हमें लगा कि वर्ल्ड हमारे लिए दो मेजर ट्रिगर्स हैं बाजार की तरफ से। वन, द साइनिंग ऑफ द यूएस ट्रीटी, क्योंकि ये जब वर्ल्ड हमेशा एवरी डे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता है और उसमें इंडिया का नाम नेगेटिवली आता है, सबके मन में कुछ ना कुछ आके अटक जाएगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज समथिंग व्हिच नीडेड टू बी आउट ऑफ द वे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अ लार्ज इकोनॉमी इज नेगोशिएटिंग विद अ स्मॉलर इकोनॉमी। तो कौन भारी रहेगा ये सबको पता है, राइट? Maybe today is not our day because of our size to negotiate properly, but जब साइज बढ़ेगा ये ट्रीटी का नेचर भी बढ़ेगा। बट आज की डेट में टू टेक आउट द नॉइस एंड सी दैट द ट्रीटी साइन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। जब आप यूएस ट्रीटी आप देख रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड साइमल्टेनियसली एक EU ट्रीटी भी बना है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग फॉर अस। मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट अस लुक एट टेक्सटाइल्स। सपोज इंडियाज टेक्सटाइल ट्रेड विद EU is 7 billion. You know what is Bangladesh? Bangladesh is 30 billion. Oh. Right. That is the scope. हमारा 7 का 15 भी हो जाएगा ना, हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। 30 आप छोड़ दो। China is 35 billion. So it is very important for us to penetrate into these markets. And let's face some facts. India is not exactly a large export country. The impact of that वो रुपये में दिख रहा है। तो एक्सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है। हमारा सामान माल थोड़ा बाहर बिके एंड वी पार्टिसिपेट इन ग्लोबल ट्रेड इज एट दिस मोमेंट द नीड ऑफ द आवर। सो दीज टू ट्रीटीज बीइंग साइंड साइमल्टेनियसली is bringing India back into the game, I feel. First one. Second, Bazaar will follow always corporate earnings. The beginning of the year, we have seen good green shoots in auto, IT. हमें दिखा है कि अच्छे अर्निंग्स आए हैं एंड हमारा हाउस व्यू था कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अर्निंग्स शुड look good, better than what it was in 2025. Once we see these two falling into place, one has fallen into place, then we will see probably the market will get the trigger it is looking for. So, from a global perspective, it is very important that we trade with every country, both export and import. Isliye these treaties become very essential. Not only that, I was very lucky to meet the commerce minister recently. और उनका था कि they have started trade with 37 nations in the world. So there is a lot of work being done by India to extend trade both ways with many countries, and it will only help us grow our economy in a far more structured manner. अभी तक तो क्या we were more our consuming economy. 96% of our produce we consume. But if you have to play bigger on the world stage, then we have to exchange trade with more countries. I think 37 countries. इट मीन्स इट इज़ ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है कि 15 से 20 कंट्रीज़ के साथ में तो FTA अभी रिसेंटली साइन किया है पिछले 1-2 साल में। जितने भी बड़े कंट्रीज हैं ना, सबके साथ हमारा एक सी इट वर्क्स बोथ वेज। एक चीज़ है, मेक नो मिस्टेक, दैट इंडिया इज अ सेकुलर ग्रोथ स्टोरी। ये हर एक कंट्री जानता है, राइट? एवरीबडी वांट्स टू हैव अ पीस ऑफ इंडिया। लाइक वी आर फ्रॉम साउथ कोरिया। आवर फोकस ऑफ इन इंडिया फ्रॉम 2007 पता है has been binary. We are absolutely confident of the growth of India. And then look at what Korean companies have done in India. लगता है वो Indian companies ही हैं. But other countries can also do the same thing, right? We can also export our things to outside the country. I give this example very often. If you look at Maruti Jimny, जो शायद इंडिया में नहीं बिक रहा है, but second largest exported car हो गया है इंडिया का, 1 lakh units. is probably the most sought after Japanese car in the world, जो 5-door इंडिया में बनता है। बट अभी 1 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट होने लगे हैं, मेड आउट ऑफ इंडिया।
Out of 100 iPhones that are made, 21 are made from India. So these are good green shoots where you can look at the labor of India and build good factories. थोड़ा लंबा चलेगा, but because factory बनाना overnight नहीं होता है, but at least we are seeing some good starting points, which in the next 5-10 years can help the country reach a very different way of doing trade with the world. When investors see global news, like जैसे 4 साल पहले रशिया यूक्रेन का था, 2-2.5 साल पहले इजराइल और गाज़ा का था, ईरान का था, राइट, और काफ़ी ग्लोबल न्यूज़ रहती है कि दैट उस इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया, यूएस में जॉब लॉसेस ज़्यादा हैं, तो उसमें हाउ इन्वेस्टर शुड नेविगेट ऑल दीज न्यूज़ और उसमें वो शांत रह के लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बना सकते हैं? दैट इज द आर्ट. जब अब आप भी व्हेन यू डू द बिजनेस, business is not about guiding the investor's return. Your business is about holding the investor's behavior. अब अगर 8 ट्रिलियन बन रहा है, अब आप उसी पे ही फोकस करोगे और बैठ जाओगे तो आपका पैसा बन जाएगा, राइट? अगेन आई रिपीट, कहना बहुत इजी है, करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये सब नॉइज आपके पास आते रहेंगे. जब आप लास्ट 10 ईयर्स अगर आप इन्वेस्टर हो और लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप न्यूज़ सब कुछ आप डालोगे तो आप देखोगे कि 99% ऑफ देम आर नॉइस, 1% रेलेवेंट होगा. एक हमारे बहुत अच्छे फाइनेंशियल राइटर हैं कार्ल रिचर्ड्स, उनका एक ग्राफ से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट आया इन क्लियरिंग दिस. देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड विच मैटर टू यू, बट देयर विल बी दैट मेनी थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल. अब उधर वार हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? पढ़ सकता हूँ और पढ़ के जो मुंबई में कहते हैं दिमाग का दही भी कर सकता हूँ, राइट? बट यू हैव टू सी इफ दैट हैज़ मटेरियलिस्टिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया. अगर नहीं है तो फॉलो द न्यूज़. कुछ दिन थोड़ा हम लोग इफेक्ट हो जाते हैं, बट धीरे धीरे जब आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हो कि ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, देन द ओनली थिंग दैट यू कैन कंट्रोल इज योर बिहेवियर. बाजार ना हमारे हाथ में है, अब कौन किसके साथ वार कर रहा है वो भी हमारे हाथ में नहीं है. तो ऐसा कहते हैं ना कि 95% ऑफ योर वेल्थ इज फ्रॉम एसेट एलोकेशन, 5% वेल्थ इज फ्रॉम मार्केट मूवमेंट. बट 95% ऑफ डिस्कशन हैपन्स ऑन मार्केट मूवमेंट, ओनली 5% हैपन्स ऑन एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन आपके कंट्रोल में है, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इनिशियली नहीं आता है. इनिशियली तो सब मान के चलते हैं कि हम भी रिटर्न के पीछे घूमते हैं, बट धीरे धीरे जब आप थोड़ा मैच्योर करते हो, इसमें वक्त लगता है, कोई शॉर्टकट नहीं. जो ये टैलेंट लेके पैदा होता है तो वो तो अलग लेवल का इन्वेस्टर हो जाता है, राइट? शायद वॉरेन बुफेट, बाकी सब हम मॉर्टल्स हैं, धीरे धीरे सीखते हैं. बट यू ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ. ये मैंने सुना था, कुछ हुआ क्या? नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम जब होता है वो सीख लेके आगे बढ़ना पड़ता है. बट जब तक आप नॉइज़ नहीं हटाते हो तब तक आपका पोर्टफोलियो नहीं हो सकता है. तब तक नहीं हो सकता तब आपको आप बाज़ार में बैठने का क्षमता भी नहीं आता है. फाइनली ये सब घूम फिर के बाज़ार में बैठने का क्षमता लाना है. दैट इज़ दिस होल आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग. सो मेरा अगला सवाल जो है वो पहले जो आपने बताया करीब करीब उसी से काफ़ी रिलेटेड है. एवरी ईयर एक डिफरेंट असेट क्लास परफॉर्म करता है. जैसे पिछले 1-2 साल में अगर जो आप देखो 1-1.5 साल में तो गोल्ड और सिल्वर ने बम्पर रिटर्न दिया है, राइट? कई बार हम लोग स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं कोई पर्टिकुलर सेक्टर बहुत अच्छा रिटर्न्स देता है. सो एक इन्वेस्टर को हाउ ही शुड डू द असेट अलोकेशन या कि उसको सबका बेनिफिट मिले, राइट? तो उसके लिए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और क्या ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ भी उसका मिस नहीं हो, कहीं ना कहीं से उसको रिटर्न्स मिलते रहे? कि हर एक साल एक नया सीख मिलता है. अगर मैं अपना 20-25 साल का एक्सपीरियंस लेके चलूं और आपसे ये बोलूं कि अगर मैं ये कहता कि इक्विटी इज़ अ ग्रोथ एसेट क्लास तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इक्विटी इज़ दी ओनली ग्रोथ एसेट क्लास. और 10 साल में जब गोल्ड इज़ आउट परफॉर्मिंग ब्रॉड इक्विटी इंडेक्स, तो जो हम मान के चलते थे, जो हम बात भी कर रहे थे, सब गलत था. और जब भी ऐसा एक सीख मिलता है तभी पोर्टफोलियो एक्शन कर लेना चाहिए. देयर इज़ अ रीज़न वाई
अगर यूरोप आप देखें 80% ऑफ रिटेल मनी गोज इनटू मल्टी एसेट स्ट्रक्चर, क्योंकि हर एक एसेट का एक साइकिल होता है। अब साइकिल अगर मुझे पता होता तो मैं सैलरीड इंडिविजुअल नहीं रहता, खुद का धंधा चलाता है। तो अगेन जो लास्ट आंसर में कहा था वही मैं दोहराता हूँ, जो मेरा कंट्रोल में है वो है एसेट एलोकेशन। हर एक एसेट क्लास का एक रिटर्न होता है। सपोज आप डेट मान के चले, ट्रेडिशनली लो रिस्क वाले 6-7% में आ जाते हैं। इक्विटी अगर आप ठीक ठाक ब्रॉड मार्केट देखें तो 10-12% का मान के चलता हूँ। गोल्ड भी करीब करीब वो हो चुका है। अगर ये 3 एसेट क्लास का आप रिटर्न मैं मान के चलूँ, जो मैं मानता हूँ अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में, अगर मेरा रिटर्न प्रोजेक्शन 12 to 13 है तो इनको मिला के मैं एक बना दूँ। आप ये बोल सकते हो 12-13 है तो इक्विटी में ही कर लूँ, लेकिन 3-4 साल ऐसा हो भी सकता है इक्विटी रिटर्न ना दें, राइट। अगर आप एक एग्रेसिव हाइब्रिड में, हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड अगर आप देखें, कोई भी एग्रेसिव हाइब्रिड 10-15 साल का अगर ट्रैक देखें तो शायद 7-8 साल इक्विटी ने रिटर्न दिया होगा, 4-5 साल डेट ने दिया होगा। वो मिला के एक बनता है। एक एग्रेसिव हाइब्रिड से एक मल्टी एसेट गया है। कोई मल्टी एसेट फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, वो आप पे निर्भर है, बट वो स्ट्रक्चर पे बात करता हूँ। कभी गोल्ड चल सकता है, कभी इक्विटी चल सकता है, कभी डेट चल सकता है। अगर हम हर जगह अपने प्रोपोर्शन या रिटर्न प्रोजेक्शन के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाएं तो शायद विल बी बेटर एट कैचिंग साइकिल्स। सो एसेट एलोकेशन फाइनली की हो जाता है, जैसे मैंने कहा है। अब कितना आपको किस में डालना है वो आपका रिटर्न पर निर्भर करेगा। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए निवेश से, वो तय करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर निवेश से जितना आपका पैसा बन रहा होगा उससे 7% में बन जाएगा तो आप डेट में रहिए। ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में क्यों आना चाहते हैं वॉलेटिलिटी में। बट अगर आपको 10 के ऊपर जाना है तो आपको सब कुछ मिलाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या चाहिए आपके पैसे से वो जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो यही वजह है कि आपने एसेट एलोकेशन के लिए आपको ये कहाँ से इंस्टिंक्ट आता है कि आपने 2023 में या बिगनिंग ऑफ द 2024 गोल्ड और सिल्वर चलना शुरू हुआ, उसके पहले ही आपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च कर दिया था। काफ़ी फंड हाउसेस ने किया था, सारे फंड हाउसेस ने डाला। और फॉर्चुनेटली कि काफ़ी क्लाइंट्स को हमने बोला कि ये एक नया एसेट क्लास है, तो उसमें क्लाइंटों ने पैसा अलोकेट किया एंड दे हैव मेड गुड रिटर्न्स आल्सो। तो ये इंस्टिंक्ट आपको कहाँ से आता है सब फंड इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को? देखिए, अगर आप खुद की बात करूं तो 2008 हमारे लाइफ में एक बड़ा पड़ाव था, राइट। और जब बहुत ऐसा नॉइज चल रहा था उसमें वारेन बुफे ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि वर्ल्ड विल ट्रेड इन डॉलर्स। तो ये मान के चल रहा था वर्ल्ड करेंसी डॉलर है। बट अगर आप 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ सोवरेन लेवल डॉलर रिजर्व इज लेस देन गोल्ड रिजर्व। जब सारे वर्ल्ड एट ए सोवरेन लेवल गोल्ड खरीदना चालू करता है तो आपको इंडिकेशन एक मिल जाता है कि गोल्ड चालू होगा। अब जब गोल्ड चालू होगा तो उससे पीछे पीछे बाकी कमोडिटीज़ तो आ ही जाएंगे। बट डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर यही है कि हमें कंसिस्टेंट बाइंग गोल्ड में दिख रही है क्योंकि सोवरेन खरीद रहा है। वो कंसिस्टेंसी बाइंग हमें सिल्वर में नहीं दिख रही है। तो इसलिए वॉलेटिलिटी ऑफ द टू विल बी वेरी डिफरेंट। अगर आप मुझसे रिस्क रिवार्ड पूछें तो मैं फेवर ऑफ गोल्ड रहूँगा ओवर सिल्वर। बट कभी कभी सिल्वर ऐसा रिटर्न दे जाएगा तो आप सोचोगे मैंने क्यों नहीं किया है। अब आज के डेट में जो सिल्वर का रिटर्न आपको दिख रहा है दैट बिलोंग्स टू इन्वेस्टर हु हैड बॉट अर्लियर, नॉट फॉर इन्वेस्टर्स हु विल कम नाउ। तो वो एक लेफ्ट आउट फीलिंग ना रखें तो बेटर है, राइट। अभी भी हम ये मानते हैं कि सिस्टमिक बाइंग ऑफ गोल्ड जो हर एक इंडियन जानता है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एवरी इंडियन एक दिन जाके खरीदता है साल में, राइट। और वो दिन में वो प्राइस नहीं देखता है या देखता है धनतेरस के दिन। हाँ, वो सिर्फ एक्यूमुलेशन के नज़रिए से आप जाके खरीदते हो। अगर मैं किसी को बोलूँ अरे यार उस दिन प्राइस बढ़ा है 1 महीने बाद आप ले लो, वो बोलेगा क्या बात कर रहा है, उसी दिन ही खरीदना है। ये जो एक हैबिट है वही हैबिट आप बाकी जगह दर्शाएंगे तो आपका पैसा बन जाएगा। आपने ना प्राइस देखा, आपने ना SIP डेट का एक टेन्योर देखा। SIP एक लाइफ टाइम में ख़त्म नहीं होता है। ग्रैंडमदर खरीद रही थी, वाइफ खरीद रही है, शायद मेरा बेटा भी डिजिटल गोल्ड खरीद रहा है, लेकिन खरीद तो रहे हैं, जनरेशनली चल रहा है।
ये जब आप एक्यूमुलेट करते हैं कोई भी अच्छा एक एसेट, और फिर गोल्ड का एक हमारा जो बर्ताव है उसको बेचते नहीं हम लोग, यस, हाँ अपशकुन माना जाता है। तो वही रूल जो हम एवरी इंडियन दर्शा रहे हैं ऑन गोल्ड, वही प्रिंसिपल अगर बाकी एसेट क्लास में दर्शा दें तो इट्स नो ब्रेनर, राइट। बट वो क्योंकि 7-8 3-4 जनरेशन में हम गोल्ड खरीद रहे हैं तो हम कंफर्टेबल हैं, शायद बाकी एसेट क्लास में 3-4 जनरेशन हो जाएगा वो भी दर्शा देंगे। बट ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि साल में एक दिन हम जाके खरीद रहे हैं एवरी ईयर, 50 ईयर, 60 ईयर, 70 ईयर्स, वही डिसिप्लिन बाकी जगह में डालें तो बहुत बढ़िया होगा। बट आप ये पूछ रहे हैं कि हम कैसे जानते हैं, ये थोड़े थोड़े इंडिकेशंस मिलते हैं। जब जितना दिन ये जियोपॉलिटिकल नेचर रहेगा उतना दिन सॉवरेन तो गोल्ड खरीदेंगे। आफ्टर द रिसेंट बजट, करंट ईयर का जो बजट था, उस दिन मार्केट में उसके बाद में भी काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ। बट जैसे ही 2 दिन बाद में यूएस और इंडिया की ट्रेड डील अनाउंस हो गई और मार्केट वापस पॉजिटिव हो गया। जी, सो बजट के ऊपर क्या ऐसा नेगेटिव था या था कि मार्केट ने इतना रिएक्ट कर लिया? मैं उस दिन भी टीवी पे यही बोला था कि बजट एकदम बहुत क्लियर बजट था। फर्स्ट टाइम जो मेरे कुछ गिले शिकवे थे अबाउट बजट्स इन द पास्ट वो एड्रेस हुए। अगर आप लास्ट 1-2 साल वर्ल्ड देखेंगे वर्ल्ड मार्केट्स, तो इट वॉज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एआई, नॉन एआई। जो एआई मार्केट्स थे वहाँ पैसा जा रहा था, जो इंडिया नहीं था, राइट। आज के डेट में तो लोग बोल रहे हैं कि यू शुड डाइवर्सिफाई टू इंडिया टू गेट नॉन एआई मार्केट, वो एक स्टोरी अभी चालू हो गया। बट फैक्ट इज वी डोंट बिलोंग टू द एआई मार्केट। फाइनली इन दिस बजट वो एक एड्रेस हुआ कि हम कुछ डेटा सेंटर्स भी वी वांट टू ओपन। सेमीकंडक्टर जो इतना बड़ा पीस हो गया, सपोज हमारे कोरियन मार्केट ने 100% रिटर्न दिया बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, राइट। So these are factors which you cannot avoid. They got addressed. For the first time I saw in the speech of the finance minister, बार एक employment पे एक स्ट्रेस आया। इंडिया 9% अनएम्प्लॉयमेंट में बैठा है आज के डेट में, तो एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मैं मानता हूँ इट्स नॉट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, बट एक इंडिकेशन गवर्नमेंट से आता है। गवर्नमेंट का केपेक्स इंटैक्ट है। एक जो नया फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज पे भी इस बार अनाउंसमेंट आया। द फैक्ट दैट एक इंडिया पे एक इम्पैक्ट था पहले जब चाइना ने उनका मैग्नेट एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, प्रॉबेबली गेव राइज टू द फैक्ट दैट हमारे भी जितने मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, इनको भी हम थोड़ा आगे लाएं। तो ये बजट में वो आया, काफ़ी नए चीज़ आए। ये सब कुछ ना सेंटिमेंटली एक खराब कर दिया ये एसटीटी, राइट, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली फेयर टू द बजट। ऐसे कितने, आप बाजार में हैं, हम भी बाजार, कितने लोग डेरिवेटिव्स करते हैं। अगर डेरिवेटिव्स में जाते हैं नोइंग दैट इट इज़ वेरी सिमिलर टू गैम्बलिंग, तो इट इज़ देयर प्रॉब्लम। बट एक सिस्टमिक रिस्क बन रहा था, उसको भी एड्रेस किया। जो 2 दिन में वो सेंटिमेंट जब निकल गया तो पीपल रियलाइज दैट इट्स अ गुड थिंग। बट जब भी ऐसा नॉइज आके बाजार थोड़ा टूटता है तभी अपॉर्चुनिटी बनता है। एज एन इन्वेस्टर जब तक आप वॉलेटिलिटी को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बना लेते हो तब तक ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से छूट जाते हैं। बट मेरे हिसाब से बजट बहुत ही अच्छा था, एक वेल राउंडेड बजट था। एक सेंटिमेंट खराब हो गया, इसका ज़रूरत भी नहीं था। ये भी मैं मानता हूँ कि आज के डेट में जब एफआईएस निकल रहे हैं, इट्स रॉन्ग टू स्पॉइल द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री। जैसे मैं भी हर बजट सुनता हूँ, तो आज तक बजट में हम लोग यही सुनते थे, ये वेलफेयर योजना, ये रूरल योजना, उसके बाद में ये मनरेगा। लेकिन ये टाइम पे इट वाज अ कम्प्लीटली अ ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर, एआई के डेटा सेंटर के लिए 21 ईयर्स का टैक्स हॉलीडे, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। एंड गिफ्ट सिटी को भी 10 ईयर्स से 20 ईयर्स किया है। गिफ्ट इट वाज अ वेल राउंडेड बजट। भाई मेरे हिसाब से इतना टॉपिक्स बहुत रेयरली कवर होता है, बट सेंटिमेंट मे बी दे आर नॉट एंटिसिपेटेड। बट सी व्हेन द मार्केट रियली ओपनड ऑन मंडे, संडे एक ट्रंकेटेड मार्केट था, बट मंडे सब फिर ठीक हो गया। व्हेन द मार्केट्स कई बार बहुत रिएक्ट करता है, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आती है, पॉजिटिव भी रिएक्ट करता है, नेगेटिव भी रिएक्ट करता है। जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है
कोई PLI की स्कीम आ गई, कोई भी गवर्नमेंट ने एक नया डिसीजन ले लिया, उस टाइम पे मार्केट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में रिएक्ट करता है। तो उस टाइम पे काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं, कई बार नेगेटिव अगर जो आता है, पॉजिटिव आता है तो वो कर बोलते हैं कि और पैसा लगा दो, और जब नेगेटिव आता है अरे यहाँ से तो मार्केट बहुत ख़राब होने वाला है, पैसा निकाल दो वो। तो हाउ अ इन्वेस्टर शुड स्टे काम इन दीज टाइप्स ऑफ पॉलिसी देखिए वट एवर गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग? क्योंकि हम लोग लाइफ में, शायद आप इसमें सहमत होंगे, जब हम लोग पहले बचपन में किसी भी चीज़, एक शर्ट ले लो आप, सेल लगती थी तो पेरेंट्स बोलते थे नहीं ये रिजेक्ट माल है। धीरे धीरे ओवर द इयर्स वी रियलाइज दैट रिजेक्ट माल नहीं है, सही माल है, कुछ वजह से या ज़्यादा सप्लाई जो भी, ये माल वो हटा रहे हैं और वही माल आपको एक अच्छे भाव में मिलने लगा। मेनी ऑफ अस वेट फॉर सेल्स। सिमिलर इज द थिंग कि जब वही स्टॉक फॉर सम पॉलिसी रीजन नीचे भाव में मिलता है, कायदे से वो लेना चाहिए। अगर आप हमारे पोर्टफोलियो देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनीज वी हैड बॉट ऑन द डे दैट कंपनी हैड अ लेबर स्ट्राइक। राइट, लेबर स्ट्राइक आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा, लेकिन उस दिन जो भाव मिला वो आज तक नहीं मिल रहा है। राइट, बट ये थोड़ा एक्सपीरियंस से बनता है। बट आई थिंक द ट्रेंड इज चेंजिंग ड्रामेटिकली। अगर हम अपने तरफ से बोलें, जिस दिन बाजार टूटता है उस दिन हमें पैसा मिलता है। बट द मिक्स ऑफ इन्वेस्टर भी काफ़ी चेंज हो गए हैं। जितने सपोज मेरे पिताजी के उम्र के थे वो शायद दे स्टिल नॉट रिएक्टिंग, बट जो यंगर हैं वो हैव स्टार्टेड बाइंग एट फॉल्स एंड इट्स अ गुड थिंग टू रिवर्स दैट बिहेवियर। जिस दिन टूटता है उस दिन तो लेना चाहिए। 8 ट्रिलियन तो बनेगा। एवरी फंड मैनेजर से आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, वो एक ही चीज़ बताएंगे, एक अच्छा बिजनेस टू बाय एट अ गुड प्राइस। जिस दिन प्राइस अच्छा मिलेगा उस दिन लेना चाहिए। बट लाइक आई सेड, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो देन पीपल स्टार्ट, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मैनी इन्वेस्टर्स, ऐसा सुनने में आता है कि उनका रिटर्न जो है मार्केट के कारण नहीं खराब हुआ है, बिहेवियर के कारण खराब हुआ है। सो हाउ टू एड्रेस दिस सिचुएशन, या इन्वेस्टर्स को आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि बिहेवियर के कारण मार्केट ने हमेशा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, बट बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करें? देखिए, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स खुद के साथ तो करने पड़ेंगे। मैं ये अगर खुद का अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी देखूं या किसी का भी देखूं, नॉर्मली हमेशा ये हम लोग एनालाइज करते हैं कि कौन सा हमने खरीदा। ये बहुत कम टाइम एनालाइज करते हैं कि किसने क्या हमने बेचा। ठीक है, बाज़ार आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बाज़ार से निकलना है, आप निकलो, आपका पैसा है। बट मेरा एक छोटा सा एक होमवर्क है जो अगर करें तो बेहतर इन्वेस्टर आप बन जाते हो। जिस दिन आप निकलते हो उस दिन का NAV आप लिख के रखो, बिकॉज यू आर कन्विंस्ड ये बाज़ार की वजह से आप निकल रहे हो। और वो NAV ना 1 साल बाद देख के थोड़ा आप दुखी हो जाओ, 5 साल बाद आप देखोगे तो आप रो डालोगे। ये रियलिटी है। आज के डेट में कोई भी रिडेम्पशन इन एनी फील्ड, अनलेस यू नीडेड इट फॉर सम अदर पर्पस, आप अगर चेक करोगे ज़्यादातर गलत ही हुएंगे। सो रिडेम्पशन एनालिसिस से बहुत सीख मिलती है, क्योंकि आपने एक कॉल लिया था, आपका कॉल ठीक है कि नहीं है वो आपको खुद से देखना पड़ता है। तो अगर आप रिडेम्पशन NAV अगर लिख के रखेंगे और उसको बार बार अगर रिव्यू करेंगे, ये बहुत बड़ा चेंज आएगा इन बिहेवियर। तभी बैठने का क्षमता भी बढ़ेगा। जब आपको पता चलेगा ये सब गलत थे और तब तो लग रहा था माहौल में ये और भी नीचे जाएगा, शायद नीचे गया भी होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज समवेयर एल्स, इट विल अलाइन टू दैट डायरेक्शन, राइट। बट ये मेरे हिसाब से एनालिसिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आपके कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट में और इन्वेस्टिंग में फ़र्क ये है कि क्रिकेट में अगर जो आप टेस्ट मैच खेल रहे हो और जो रियल क्रिकेट है, तो रियल इन्वेस्टिंग इज़ लाइक टेस्ट मैच। विकेट पे डटे रहो, आप मैच पक्का जीतोगे। सिंगल में भी बनता है, सिंगल में भी आप जीतोगे। बैट्समैन पे डिपेंडेंट है। अगर आप सबसे, मेरे हिसाब से माय मोस्ट फेवरेट बैट्समैन हैज़ बीन सुनील गावस्कर, और उन्होंने जो बॉलिंग अटैक फेस किया था, शायद कोई बैट्समैन एक साथ वो बॉलिंग अटैक नहीं फेस किया है। वेस्ट इंडीज़ के 4-5, इधर इमरान खान, उधर रिचर्ड हार्डले, इधर डेनिस लिली, ऐसा एक साथ बॉलर्स नहीं थे।
उनसे 1970 में एक बात पूछा गया था कि जब वो वेस्ट इंडीज़ गए थे कि हाउ डू यू हैंडल दिस बॉलिंग अटैक। उन्होंने बोला था फ्रॉम द नॉन स्ट्राइकर्स एंड। विकेट बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो विकेट में रह जाता है वही रन करता है, और हमारा बाजार भी वैसे ही है। विकेट में रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्कोरिंग। रह जाओगे तो रन बनेगा, ऐसा कोई डाउट नहीं है किसी के मन, बट रहने का क्षमता भी एक डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट। कभी कभी जैसे अभी ग्लोबल इतने टर्मोइल है तो आप क्या करोगे, फिर थोड़ा सेफ आप हो सकते हो, बट बाजार से तो नहीं हट सकते हो, राइट। सो बाजार में रहना इज इम्पॉर्टेंट। बाजार से बाहर जो रह गए वो बाजार से बाहर ही रह जाएंगे। Many new investors, they have started their investment journey either in COVID या post COVID, और उन्होंने सितंबर 2024 तक करीब एक बुल रन देखा है। जी जी, राइट। बीच में 1-2 महीने के 3 महीने के करेक्शंस को टेम्परेरी आए और वापस चले गए। सो 2024 सितंबर में मार्केट पीक हुआ था, और उसके बाद में ऑलमोस्ट 17 मंथ्स हो गए। मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, इट्स अ कंसोलिडेटिंग, राइट। सो उसके अंदर काफ़ी लोग कुछ फ्रस्ट्रेट भी हो गए कि ये मार्केट में तो रिटर्न ही नहीं बन रहा है। जो उसमें बाद में ज्वाइन हुआ, जितना पहले ज्वाइन हुआ कि वो तो ठीक है, तो कि ये मार्केट में रिटर्न ही नहीं बन रहा है, तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी? सी इन्वेस्टिंग इज अ जर्नी। जर्नी में दो पहलू होते हैं, एक होता है रिटर्न जनरेशन, एक होता है रिस्क प्रोफाइल जानना। अगर आप निफ्टी 50 का 25 साल का ट्रैक देखें तो बिफोर कोविड नॉर्मली 6-7 ईयर्स में निफ्टी 50 डबल करता था। एक कोविड में अच्छा एक लो बेस मिल गया तो 3 साल में कुछ चमत्कार हो गया, बट यहाँ से प्रॉबेबली इट इज़ रिवर्टिंग टू दैट मीन 6-7 ईयर्स ऑफ डबलिंग, राइट। तो उसमें ऐसा नहीं कि हर एक साल रिटर्न देता है, हाँ, बट जब आप ऐसे एक माहौल में चालू किए हैं वह सब कुछ अच्छा लग रहा था, ये शायद थोड़ा शौक आएगा, बट एवरी एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिंग कम्स विथ सम लर्निंग। अब जितना जल्दी ये लर्निंग ले सकें उतना आपको आगे जाके हेल्प करेगा इन इन्वेस्टिंग, क्योंकि अगर आप एवरी एसेट क्लास, जैसे मैंने पहले बोला था, एक रिटर्न बनता है, उसके ऊपर जब आप रिटर्न बनता है तो आपको मानना पड़ेगा कि एक एबरेशन है। मिल गया तो बहुत बढ़िया, आपका लक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि चलेगा। अगर उतना 20-25% रिटर्न बाजार में मिलेगा तो बाकी सब कुछ काम छोड़ के इसी में ही पैसा लगा देंगे। इट बिकम सो ईजी, बट इतना ईजी नहीं है, राइट। अगर आप कोई भी कंपनी जिसमें आप निवेश कर रहे हैं उनकी ओनर से पूछे इज दिस द पीक ऑफ योर स्टॉक और इज दिस द बेस्ट टाइम ऑफ योर स्टॉक, दे विल ऑल्सो नॉट नो। एज अ फंड मैनेजर हमारा क्या काम होता है कि ऐसे 50-60 ओनर लेके एक पोर्टफोलियो बनाए डाइवर्सिफाइड, और वो ओनर्स के साथ हम एक जर्नी लें। वो ओनर का वैल्यू कब अनलॉक होगा हमें पता नहीं, बट हमारी शायद एक्सपर्टीज ऐसा है कि वो अनलॉक होगा, ऐसे कंपनीज हम लेते हैं। अब जब अनलॉक होते हुए जाएगा तभी पोर्टफोलियो में दिखेगा, वो एनएवी में दिखेगा, बट वो पेशेंस रखना पड़ेगा। जो नहीं रख पाएगा वो, अगर आप एक फंड मैनेजर से पूछें कि आपका एक्सपेक्टेशन अगर बन जाएगा कि ओनर को पता नहीं है बट फंड मैनेजर को पता है, ये तो गलत ही एक्सपेक्टेशन रह गया। बट if you are with good companies, take the journey with the good company, because through equity you are owner of that company. Behave like an owner ना, तो आगे जाके ठीक ठाक बनेगा। ओवर द इयर्स आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिटीज़ डिफ्रेंशिएट करती है एक इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाया है और एक इन्वेस्टर ऐसा है कि जो स्ट्रगल कर रहा है वेल्थ बनाने में? सो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ये हमारे म्यूचुअल फंड में डेटा सबको पता है, 2 तरीके के लोग ही पैसा बनाए हैं, एंड एक जिसका अकाउंट स्टेटमेंट खो गया है, जिसको पता ही नहीं कि पैसा बाजार में रह गया गलती से, वो पैसा बना लिया, और सेकेंडली जो हैज़ डाइड। बाकी कोई बाजार में टिकता नहीं है, जो टिक जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे एक फंड है, ऐसा फंड बेच नहीं रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले इमर्जिंग ब्लू चिप हुआ करता था, अभी मेरे ऐसे लार्ज एंड मिड कैप, राइट। इन 17 ईयर्स इट हैज़ गिवन अराउंड 17 टाइम्स, राइट। 1 लाख का 17-18 लाख हुआ है, साल का 1 लाख। अभी मुझे कंपनी में 15 ईयर्स हुए हैं, तो मेरा मनी इज़ 15 टाइम्स, मेरे 1 लाख 15 लाख। अभी यहाँ पे क्या चाहता है? लास्ट 1-2 साल से ये फंड शायद इतना अच्छा नहीं किया जितना कर रहा था। लोग बोल रहे थे कि इसका परफॉर्मेंस
शायद वैसा नहीं, विच इज करेक्ट, आगे जाके शायद अलग होगा, राइट। बट आप मेरा सिचुएशन देखिए, अब 15 साल में 15 लाख तो आपको लगता है साल में 1 लाख बनाए, बहुत बढ़िया, राइट। यहाँ से अगर फंड ठीक नहीं किया, मुझे 10% भी दिया है ना, 15 लाख में मेरा 1.5 लाख बनाएगा, विच इज हायर देन व्हाट आई वाज मेकिंग एट अ हायर रिटर्न। इज ए बिजनेस ऑफ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग सीख लिया तो उसका सब कुछ हो गया। मुझे 1.5 लाख चाहिए या रिटर्न चाहिए, मुझे 1.5 लाख चाहिए, 1.5 लाख इज अ लॉट ऑफ मनी, अगले साल फिर वो बढ़ जाएगा, बेस बढ़ जाएगी। ये सीख आने में थोड़ा टाइम लगता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस बिजनेस, सो अनफॉर्चुनेटली मैनी विल लर्न द हार्ड वे। मैंने भी सीखा है। पहले जब हम लोग चालू किए थे तो हमें लगता था हम तो म्यूचुअल फंड के हैं, तो हमें तो बाजार सब पता है। जितना स्टॉक लिया उतना सब लॉस किया, एवरी स्टॉक। तभी मैं फंड मैनेजर को चेंज किया। बट तभी एक ओरिजिनल मुझे एक रियलाइजेशन था कि एक बार मैं फंड मैनेजर चूज करूंगा ना, उस पे फंड मैनेजर नहीं बनूंगा। फिर आई एम इंटरेस्टिंग माई मनी विद द फंड मैनेजर, आई टेकिंग द जर्नी। सुपर फंड मैनेजर नहीं बनोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो बहुत क्लाइंट हमको बोलते हैं कि आप सुपर फंड मैनेजर बनो, ये फंड मैनेजर ने किया है, उसमें पैसा बन गया तो दूसरे फंड में लेके जाओ। तो फंड मैनेजर तो एक्शन ले ही रहा है स्टॉक पे, आप फंड पे एक्शन लो। सो हम लोग क्लाइंट को यही बोलते हैं कि इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ सुपर फंड मैनेजर देन वी आर द रॉन्ग पीपल। वेल सेड। ऑलवेज क्वेश्चन द मैजिशियन इन दिस मार्केट। अगर कोई मैजिशियन है तो उससे क्वेश्चन किए, जो नॉर्मल काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बट ये जो आंसर आपका है एकदम सटीक आंसर है। जैसे आपने मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप का नाम बताया, एक बार हमने डेटा एनालिसिस किया था तो करीब करीब हमारे 20 इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि डे 1 को आए थे मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप में, और 10-15 इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो मेरा लार्ज कैप में आए थे 2008 में। स्टिल दे आर राइट। सो इवन मेरा मिड कैप 2018 में आई थिंक आईपीओ आया था, एनएफओ आया था, और 2018 में 10 रुपीज़ का एनएवी था, अभी आई थिंक 40-45 रुपीज़ कुछ चल रहा होगा। सो उसमें 90% ऑफ इन्वेस्टर्स, काफ़ी लोगों ने बोला यहाँ पे पैसा बन गया तो हम दूसरी जगह, उनको कन्विंस करके यही कि ये मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप आप देखो, एंड दे आर स्टेड इन्वेस्टेड इन मेरा मिड कैप। सो चीज जो रह गए उनका पैसा बन गया। ऐसा मेरे का नहीं है, काफी फंड ऐसे हैं, तो बट उनको रोकने में आपका हाथ रहता है, वो खुद से नहीं रुकते शायद, बट दैट इज द जॉब, राइट। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो है, जो आपने अभी आंसर दिया, उसी से रिलेटेड है कि आज की डेट में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन इतना भरा पड़ा है कि वो चाहते हैं कि वो तो फंड मैनेजर भी सुपर फंड मैनेजर है, उनको तो पूरा का पूरा ज्ञान है, राइट, और ओवरलोडेड है इंफॉर्मेशन से। उसके अंदर हाउ व्हाट यू सी, व्हाट इज द रोल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड व्हाट क्वालिटी अ डिस्ट्रीब्यूटर शुड हैव टू मैनेज द क्लाइंट्स बिहेवियर? देखिए, फाइनली जब आप भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, व्हेन वी स्टार्टेड दिस इन्वेस्टिंग जर्नी, हम लोग सब मान के चलते हैं कि रिटर्न जनरेशन का बिजनेस है। धीरे धीरे जब आप मैच्योर करते हो तो आपको ये पता चलता है कि एक रिस्क मिटिगेशन का बिजनेस है, और उसके बाद आपको पता चलता है कि आप निवेश क्यों कर रहे हो, कुछ हासिल करने के लिए। पहले तो रिटर्न चेजिंग पे चालू हो जाता है, मुझे बेस्ट रिटर्न चाहिए, उसमें कुछ साल बीत जाते हैं, फिर वो रिटर्न चेजिंग में ये फंड से वो फंड से ये फंड, क्योंकि पास्ट रिटर्न पे हम चूज करते हैं, पास्ट रिटर्न बिलोंग्स टू दोज इन्वेस्टर्स। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम निवेश करते हैं, फंड वैसा नहीं करता है, राइट। तो एज यू ग्रेजुएट यू रियलाइज कि निवेश का एक लक्ष्य इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एंड जब ये लक्ष्य इम्पॉर्टेंट हो जाता है तभी एडवाइज़र आते हैं कि आपका निवेश का एक मायने देना एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या चाहिए आपको शायद खुद नहीं पता, बिकॉज आपके एडवाइज़र के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आपने काफ़ी लाइफ बिताया, वो शायद आपको बेहतर जानते हैं। नहीं आपको ये गाड़ी नहीं लेना चाहिए, वो गाड़ी लेना चाहिए। बच्चे के लिए लगता है आपको 3 लाख का लगेगा, लेकिन एक्चुअली ना 6 लाख हो जाएगा। ये डायरेक्शन मेरे हिसाब से नंबर 1। सेकेंडली, हर एक का, मेरा ये मानना है, हर एक का एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में स्टार होता है गोल। जो इन्वेस्टर को वो स्टार तक लेके जाते हैं वो होते हैं रॉक स्टार, वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र। क्योंकि लक्ष्य तक लेके जाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें बिहेवियर आ जाता है, उसमें डिसिप्लिन आ जाता है। मैं ये मानता हूँ कि आपका रोल रिटर्न देना नहीं है, मैं ये मानता हूँ सबसे बड़ा रोल है उनको धैर्य देना,
उनको रोक के रखना। जो आपने बोला है कि लार्ज कैप में इतने हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ खुद से वो नहीं रहते, राइट, बट वो रखना इज योर मेन जॉब। एंड सेकेंडली, जिस दिन वो गोल पहुंच जाए उस दिन उनको रिडीम करके उनका गोल उनको वो एहसास कराना या उनका लाइफ बेहतर बनाना आपका रोल है। सो जैसे आप एक फंड मैनेजर के पास जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक अगर खुद चयन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, कर लो। अगर नहीं करते हो या करना भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, एक सिंपल सा फंड मैनेजर लेके उसके साथ आप चलो। बट कौन सा फंड मैनेजर आपके लिए बेहतर है वो एक एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर ही बताएगा। वो बेस्ट फंड होगा। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं तेरा बेस्ट फंड बताओ, मैं पूछता हूँ क्यों, बोलते हैं क्यों क्या, मुझे वही चाहिए। बोला तुमको कैसे पता कि वो तुम्हारा फंड है? उसका जो वॉलेटिलिटी है, पोर्टफोलियो कंपोजिशन है, रिस्क प्रोफाइल है, वो ऐसे रिटर्न देखने से पता नहीं चलता। वहाँ पे आप आते हो। अगर ये सब आप मिला के चलते हो, मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर आराम से अपना लाइफ लीड करना चाहिए। और लाइफ के जितने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है आप पे अगर छोड़ के आप पे भरोसा रखें तो उनका लाइफ बेहतर हो सकता है। तो द रोल, इट इज़ अ बिजनेस ऑफ एडवाइस। ये आपने जो बताया वो काफ़ी टाइम हम लोग इन्वेस्टर को ये बोलते हैं, ये आपका डेटा कहता है, राइट, कि आप सपोज 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट है भी सही आपका, या 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, एवरेज फंड मैनेजमेंट फी 1.5 से 1.75 के बीच में वेरी करती है करीबन। 10 करोड़ का अगर जो इन्वेस्टमेंट है तो आप 17 लाख रुपए में टॉप फंड मैनेजर को आप हायर कर सकते हैं, राइट। वो आपका पैसा मैनेज करेगा, जिसकी मार्केट वैल्यू अगर जो उस फंड मैनेजर की बोलो तो 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपए, राइट। कि यू कैन हायर मीन्स यू कैन अपॉइंट एनी फंड मैनेजर, राइट, टू मैनेज योर वेल्थ। 10 करोड़ आपने दिया, आज आप 10 करोड़ किसी बिजनेस में अगर जो लगाते हो तो उसके लिए आपको पार्टनर चाहिए, बिजनेस रन करने वाला, उसको कितना पैसा देते हो? बराबर, वेल सेड, राइट। यहाँ पे तो हमारे नीलेश भाई हैं, नीलेश सुराना हैं, या कोई भी फंड मैनेजर हैं, राइट, दैट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। 10 करोड़ इन्वेस्ट करोगे, 100 करोड़ का टर्नओवर करेगा वो, राइट। कम से कम उसको 50 लाख 1 करोड़ रुपए आप वर्किंग पार्टनर को देंगे, हु इज गोइंग टू मैनेज द बिजनेस। और यहाँ पे 15 लाख में, और 15 लाख में भी ऑल इंक्लूसिव, डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट भी इंक्लूसिव हो गया, nothing else. Absolutely. Today, young investors are influenced by social media like anything, right? उनको सब जगह ट्रिक चाहिए, खाना चाहिए, फटाक से ऑर्डर किया 10 मिनट में आना चाहिए, कुछ खरीदना है ऑर्डर किया, होम डिलीवरी होनी चाहिए, राइट। इंटरनेट चाहिए तो टॉप मोस्ट स्पीड चाहिए, राइट। तो बट एक वो उससे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कई बार उनके माइंड में कि ये पैसा इतना जल्दी क्यों नहीं बनता है, क्विक रिटर्न। सो these types of young investors, what will be your advice to them? मेरा बेटा 26 साल का है, तो थोड़ा बहुत क्वालिफाइड हूँ इस पे आंसर करने का। ऐसे दिखते हैं बट है नहीं। देखिए, आप भी यू मीट सच पीपल, उनका इकोनॉमिक स्टेटस हमारे जनरेशन से बेटर है, उनका नॉलेज लेवल हमारे से बेटर है, और उनका मोरलेस नीड्स ना ऊपर के 2 जनरेशन ने टेक केयर किया है। तो उनको समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अपने ऑफिस का बात बोलूं, अगर मैं नीलेश या 2-3 लोगों को निकाल दूंगा ना, तो ये ऑफिस का एज 29-30 है। Oh, हाँ, such a young team. yes, and to expect them to behave like me is fundamentally wrong. मुझे उनको समझना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा उनको समझे ना, आई फील कि वो आपको हमारे जनरेशन से ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, लेकिन आपको उनके जैसा बिहेव करना पड़ेगा। अगर वो रील देख रहे हैं तो रील में क्या देख रहे हैं वो नॉलेज हमें होना चाहिए, राइट। उनका लैंग्वेज है, उनका बिहेवियर है, वहाँ तक हमें जाना पड़ेगा, नहीं तो वो अलग हैं, राइट। एवरी टाइम वेदर इट इज़ माई जनरेशन और माई फादर्स जनरेशन, आपने वो किया है नेचुरली क्योंकि वी बिलोंग टू दैट जनरेशन। इसमें हमें थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जितना ट्रस्ट करेंगे आपको, क्योंकि उनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उनको इतनी पड़ी नहीं है जितना हम लोग का गरज था कि ये रिटर्न चाहिए। इफ़ यू मैनेज टू चेंज दैट अबाउट आवरसेल्व्स, व्हिच इज मी आल्सो, हम लोग जैसे प्रोडक्ट लेके चलते हैं, आई डोंट थिंक मेरा बेटा फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करेगा। अब मैं फ्लेक्सी कैप लेके बैठूंगा तो वो कहीं और जाएगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट। वो शायद मोर थीमेटिक देखेगा, शायद वो ईवी उसको अच्छा लगेगा,
लगना भी चाहिए, राइट? तो अंडरस्टैंडिंग देम हैज बिकम द चैलेंज। वो वैसे हैं और द जनरेशन इज लाइक दैट, उनको इंफॉर्मेशन बहुत क्विक चाहिए कि क्विक मिल भी रही। वी हैव टू, आई थिंक, चेंज आवरसेल्व्स टू अंडरस्टैंड देम। बट एक बार आप वो ब्रिज क्रॉस करेंगे ना, उनका लॉन्ग टर्म नेचर विथ यू विल बी लॉन्गर देन माय जनरेशन। ये मेरा वादा है, क्योंकि वो ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे। उनको इनसिक्योरिटी है नहीं जो हमारे में वो एक था। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, क्योंकि बाय 2026 आंकड़े ये कह रहे हैं कि 56% ऑफ आवर इंडस्ट्री फोलियोज विल बी बिलो 30 इयर्स ऑफ एज। बाजार तो उधर जा रहे हैं, सब कुछ उधर जा रहे हैं। शायद हम में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। अगर जो इस पूरे कन्वर्सेशन से कुछ कंक्लूड करना है, what will be a strong message to the investors, all age types, young investors, higher, कि एक मंत्र ऐसा मिल जाए कि how to create wealth in a long term? देखिए, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बात करूंगा। All of us have to realize that we are extremely fortunate to be investing in this country at this point of time. Right? There is no country which will double its economy in the next 8-10 years. You are in that zone. Right? So understand that power. If you understand that, you will behave differently. कि ये बनेगा और कोई वर्ल्ड में ऐसा कंट्री नहीं है। आप यूनिक हो और यू हैव टू थैंक योर स्टार्स कि आप ये टाइम में निवेश कर रहे हो। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वंस यू रियलाइज दैट, फिर एवरीबडी हैज द नॉलेज टू देन वर्क ऑन इट। But 9 out of 10 times people kind of don't believe that. It is not about believing, it is about internalizing. ये तो हो ही रहा है। फिर उसमें से मैं कैसे अपना फायदा उठाऊं, और वो फायदा आपको कैपिटल मार्केट्स देता है, बहुत वन ऑफ द इजीएस्ट वेज। और ये 2035 तक जो बाजार में बैठ गया, हम शायद एवरी ईयर ये वीडियो करके रिव्यू कर सकते हैं। और 2035 में हम साथ में बैठेंगे, जितने भी इन्वेस्टर्स ये छोटा सा एक बिलीफ ले लें और बाजार में बैठ जाएं, तो उनका जितना पैसा बनेगा उसमें से व्हाट्सएप कर ले बस। बट दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम टू बी एन इंडियन इन्वेस्टर। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दैट। तो इतना पैसा बनेगा तो 2035 में कोई गोल्फ कोर्स में इंटरव्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तब तक मैं बहुत सब लोग को बोलता हूँ, तब निवेश का इंटरव्यू नहीं होगा, स्पेंडिंग का इंटरव्यू होगा कि पैसा को हम जुडिशियसली स्पेंड कैसे करें। राइट? क्योंकि क्या होता है, जब पैसा बन जाता है थोड़ा इनसिक्योरिटी अबाउट लूजिंग इट भी हो जाता है। तब शायद ये इंटरव्यू 2035 में कि वो पैसा को हम स्पेंड कैसे करें, उस पर भी हमें एक्सपर्टीज लेना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर answering so many questions and giving insights about the mutual fund कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या क्वालिटीज़ एक इन्वेस्टर में और डिस्ट्रीब्यूटर में होनी चाहिए। नो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सिर्फ इसी पे एंड करूँगा कि एक देयर इज अ रिस्क टू इन्वेस्टिंग, देयर इज अ रिस्क टू नॉट इन्वेस्टिंग, देयर इज अ रिस्क टू इन्वेस्टिंग इन इंडिया, देयर इज अ रिस्क टू नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। एट दिस मोमेंट the risk to not investing in India is very large. ये जो समझ जाता है ना, बाकी कुछ करना नहीं पड़ता, खुद से कर लेंगे। But thank you so much, really appreciate. More important, thank you for all your support. And I think I must say this, you trusted Mire when a very few employees of Mire also did not trust India. So that's the power of a distributor too. लोग कहते हैं ना, एक फंड मैनेजर को स्टॉक से पहले आइडेंटिफाई करना, वैसे एक फंड को उसके बेस्ट परफॉर्मेंस से पहले आइडेंटिफाई करना। आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि जब आप इमर्जिंग ब्लू चिप और इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किए थे, शायद इंडिया में कितने 8-10 लोग किए होंगे। सो दैट्स योर पावर। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक्स वंस अगेन। और ऑल आपने जो बात की उसमें एक और एडिशन करूँगा, ऑल आवर इन्वेस्टर्स दे आर सो हैप्पी, राइट, कि दे हैव इन्वेस्टेड reasonable allocation in the Mirai and which has performed very well. I will convey this. All the funds has performed very well, but Mirai, we have trusted you and you have delivered that. I will convey this to the fund management team. They'll be very happy. Thank you so much.